نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور کٹا کو سر کے ہیں مقصد میں کامیاب حسین. کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب حسین. شریعت نبوی برقرار ہے کہ نہیں اور پکارتا ہے زمانہ حسین زندہ باد. یزید تو ہی بتا تیری ہار ہے کہ نہیں. امام حسین علیہ السلام کو یزید نے قتل کر کے یہ سوچا تھا کہ حسین کی آواز کو بند کر دیا جائے گا, علم بغاوت بلند کرنے والے کو ختم کر دیا جائے گا, حسین کی آواز کو بند کر دیا جائے گا, ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا. تو کوئی شخص ہمارے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا, کوئی ہماری حکومت کے خلاف مخالفت نہیں کرے گا, کوئی ہمارے خلاف اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا. لیکن اس نے جو سوچا تھا ایسا نہ ہو سکا. جب اس نے امام حسین علیہ السلام کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کرایا ہے تو معاملہ کیا ہوا کہ ایک حسین تو شہید ہو گئے اپنے لہو سے, اس نے تمام دنیا میں لاکھوں حسینیوں کو زندہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے اسلام کے پرچم کو ہرا بھرا کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹا کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی زندہ جاگتی تصویر سامنے رکھ دی کہ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک ٹکڑا حدیث کا یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے, یعنی ہر لڑکا اپنے والد محترم سے ہوتا ہے, ہر پوتا اپنے دادا سے ہوتا ہے, ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی, لیکن حدیث کا یہ جملہ کہ میں حسین سے ہوں, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں میدان کربلا میں جانا ہوگا. جبکہ میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں 10ویں محرم کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر یزیدیوں کے سامنے کٹا کر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا, نماز کو بچا لیا, قرآن کو بچا لیا, جنتی لوگوں کو بنا دیا, اور جتنے لوگ راہ راستے سے بھٹکے ہوئے تھے ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیا کہ اے لوگوں دیکھو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو قتل کر دو, لیکن حسین ایسا حسین ہے جو اپنے نانا جان کی اس حدیث کو لوگوں کے سامنے عام کر دے گا کہ مجھ سے میں حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ نماز حسین سے ہے, قرآن حسین سے ہے, صدقہ حسین سے ہے, زکوٰۃ حسین سے ہے, حج حسین سے ہے, جتنی عبادات ہیں وہ سب حسین سے ہے, کیونکہ حسین نے اپنے سر کو کٹا کے تمام عبادات کو اپنی صحیح جگہ مسلم و قائم فرما دیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹایا. یاد کرو مسلمانوں, وہ کیسا واقعہ رہا ہوگا جس کی بنیاد امیر شام کے دور میں ہی رکھی گئی. سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کے دور حکومت میں جس کی بنیاد رکھی گئی, ساری داستان رچ بچ گئی تھی وہیں سے, سارا معاملہ وہیں سے طے ہو چکا تھا کہ میرے بعد میرا ناخلف بیٹا
तख्ते हुकूमत पर बैठेगा। और हुआ भी ऐसा ही, जब अमीर शाम का इंतकाल हो गया तो उनके इंतकाल के बाद उनका नाखलफ बेटा जिसका नाम था यजीद पलीद, वो तख्ते हुकूमत पर बैठा। जब वो हुकूमत पर बैठा तो उसने मदीना के गवर्नर के नाम एक खत जारी कर दिया कि अय गवर्नर मदीना, अय वलीद, मैं तो कूफियों को जोर जबरदस्ती से अपना पैरोकार बना लूंगा, अपने हाथ पर उनकी बैयत करा लूंगा, शामियों इराकियों को मैं बैयत ले लूंगा, लेकिन एक जात है जिनका नाम है हुसैन, जो नबी का नवासा है, अली का लाडला है, फातिमा का जिगर गोसा है, इमाम हसन का भाई है, वो कभी मेरी बात को नहीं मानेगा, वो कभी अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं देगा, वो कभी मेरी बैयत नहीं करेगा। तुम जिस तरीके से भी हो सके इमाम हुसैन की बैयत लेकर मेरे पास आ जाओ, उनका जो सर्टिफिकेट है वो लेकर मेरे पास आ जाओ कि हुसैन ने मेरी बात मान ली है। वलीद और जितने सिपाह जितने भी सिपाह थे वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास मदीना की गलियों में आ जाते हैं, आपके खानवादा आपके घर पर तशरीफ ले आते हैं और आपके घर पर आ जाते हैं और आकर कहते हैं हुसैन, यजीद ने आपसे बैयत का मुतालबा किया है, यजीद आपसे बैयत तलब कर रहा है, वो चाहता है अमीरुल मोमिनीन, वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपसे बैयत के तलबगार हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ पर बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो कभी ना होगा कि नबी का नवासा हुसैन यजीद जैसे पलीद के हाथ पर बैयत कर ले। अरे यजीद जिसके बारे में हर इंसान जानता है कि यजीद से बड़ा फासिको फाजिर इस जमीन पर कोई शख्स दूसरा मौजूद नहीं है, क्या ये हो सकता है कि अगर उजाला से ये कहा जाए कि तू तारीकी में समा जा तो उजाला तारीकी में समा सकता है, अगर ये कहा जाए कि आसमान से तू जमीन की पस्ती में समा जा तो क्या आसमान जमीन की पस्ती में समा सकता है, ये कहा जाए सूरज से कि तू अपनी रोशनी को छोड़ दे, जब ये नहीं हो सकता तो नबी का नवासा अली का लाडला जिसके रगों में अली का खून दौड़ रहा है, जिसकी रगों में फातिमा का दूध दौड़ रहा है, जिसके मुंह में नबी का लुआबे दहन है, वो कैसे यजीद पलीद के हाथ पर बैयत कर सकता है। मैं कभी बैयत करने को राजी नहीं हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बार बार बैयत का मुतालबा किया जा रहा है, बार बार एक ही सवाल किया जाता है कि अय हुसैन आप यजीद की बैयत कर लीजिए, दौलत से नवाज दिया जाएगा, शोहरत से नवाज दिया जाएगा, इज्जत से नवाज दिया जाएगा, मकाम और मर्तबा दिया जाएगा। अरे जिसके कदमों में सारी दुनिया और सारी आखिरत की दौलत मौजूद है उसको लालच दी जा रही है, उससे समझौता कराया जा रहा है, उससे खरीदो फरोख्त किया जा रहा है, उससे सौदाबाजी की जा रही है। जिसको अल्लाह तबारका व तआला ने कुल कायनात का सरदार बनाकर भेजा है उससे कहा जाता है कि यजीद के हाथ पर बैयत कर लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत से इनकार किया, बार बार इनकार किया, यजीद की जानिब से बार बार मुतालबा हो रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि ये मुतालबा खत्म होने वाला नहीं है तो आपने ये फैसला फरमा लिया कि मुझे शहर मदीना शरीफ को छोड़ना होगा, क्योंकि ये प्यारा मदीना ये हुर्मत वाला शहर है, ये नबी का बसाया हुआ शहर है, ये मेरे आका के आंखों की ठंडक वाला शहर है। मैं इस शहर में कभी कत्लो जिदाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जंगो जिदाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस शहर में खुराफात को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस शहर में फसादात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना शरीफ को छोड़ने का इरादा कर लिया। आखिरी रात है, मदीना शरीफ छोड़ना चाहते हैं, नाना जान की कब्र अनवर पर हाजिर होते हैं। ऐ मेरे प्यारे नाना जान, ये आपका प्यारा शहर मदीना है, जालिम यजीद की जानिब से बार बार बैयत का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपका नवासा आपका जिगर गोशा आपका बेटा हुसैन यजीद के हाथ को थाम ले, ये कभी ना होगा। ऐ मेरे प्यारे नाना जान, अब आपसे मेरी जुदाई होने वाली है, आपके प्यारे रोजे को मुझे छोड़ना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सारी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहे थे कि इतने में आंखें लग जाती हैं। जब आंख लगी है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार शरीफ होता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे बेटे हुसैन परेशान ना हो, ये जो दूरी होने वाली है ये चंद घंटों की और चंद दिनों की दूरी है, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला तुम बहुत जल्द मुझसे हमेशा हमेशा के लिए मिल जाओगे। इजाजत मिल जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें खुली, घर तशरीफ ले जाते हैं, घर वालों से कहते हैं मैंने नाना जान से सारा वाकया बयान कर दिया है कि अब मुझे मदीना छोड़ना होगा, अब हम सबको मक्का जाना होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा था, सबब ये था कि किसी भी तरीके से यहाँ खलफशार ना होने पाए, सबब ये था कि यहाँ यजीदी फितना ना आने पाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का रवाना हो गए। जब मक्का पहुंचे हैं तो मक्का की सरजमी पर आपको कुफा के खुदूत आना शुरू हो जाते हैं। एक
एक दो खतूत नहीं बल्कि 150 खतूत, और हर खतूत के यही मजमून होते थे कि ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, यजीद ने हमारे साथ बड़ा ही ऐसा मामला किया है कि वो इस्लामी कवानीन में वो अपने कवानीन को दाखिल करना चाहता है। यजीद शराब पीता है, यजीद जिना के काम करता है, यजीद फहाशी के काम करता है, यजीद हर तरीके के बुराई के काम को अंजाम देता है। हम चाहते हैं कि आप कूफा चले आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, यजीद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ये देखते हैं कि 150 खतूत आ गई है और सब खतूत का मजमून यही है कि आप कूफा तशरीफ लाइए, आपके हाथ पर बैत की जाएगी और यजीद का ऐसा ऐसा मामला है, तो इस्लाम की खातिर, इस्लाम के नाम की खातिर, नाना जान की खातिर, खुदा की रजा की खातिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक फैसला फरमाया। फैसला ये था कि मैं कूफा जाऊंगा। लोगों ने समझाया, प्यारे हुसैन आप कूफा ना जाइए, क्योंकि इससे पहले कूफा वालों ने आपके वालिद मोहतरम के साथ बदअहदी का मामला किया था, आपके वालिद के साथ गद्दारी का मामला किया था। आप जाएंगे तो हमें खदशा, अंदेशा और डर है कि वो लोग आपके साथ भी गद्दारी का मामला करेंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये बात अपनी जगह है, लेकिन ये बात भी तो मुसल्लम है, जब मैदान महशर कायम होगा, कयामत का आलम होगा, उस वक्त ये सारे लोग जब इनसे पूछा जाएगा कि तुमने यजीद का हाथ क्यों थामा था, तो ये लोग मेरा गिरबान थाम कर कहेंगे, हुसैन हमने तो आपको बुलाया था, लेकिन आपने हमारी बातों का कोई जवाब ना दिया, आप कूफा ना आए तो हमें मजबूरन यजीद की बातों को मानना पड़ा, उसके हाथ पर बैत करनी। पता मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फैसला कर दिया तो लोगों ने कहा कि अच्छा, अगर आप चाहें तो किसी और को अपना नायब नुमाइंदा और अपना जानशी बनाकर कूफा रवाना कर दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया। जब इमाम मुस्लिम कूफा पहुंचे तो कूफा में जब लोगों को ये मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील उनके नुमाइंदा बनकर तशरीफ लाए हैं, तो तकरीबन 12,000 लोगों ने हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत की है। जब बैत कर ली है, इमाम मुस्लिम ने जब ये देखा कि यहाँ के हालात बड़े अच्छे हैं, लोगों ने अपना वादा वफा कर दिया है, मेरे हाथ पर इतने लोगों ने बैत कर ली है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम आपने खत जारी फरमा दिया, खत इरसाल कर दिया कि ऐ मेरे प्यारे हुसैन आप भी कूफा तशरीफ लाइए, यहाँ के लोगों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा मामला किया है और तकरीबन 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम मुस्लिम का ये खत मिला, आप कूफा रवाना हो गए। दूसरी जानिब मामला ये हुआ कि जब आप कूफा के रास्ते में थे, अभी आधा रास्ता तय हुआ था, खबर मिली कि इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। कूफा वालों ने बदअहदी कर दी, जो उनका हमेशा से मामला था वही मामला इमाम मुस्लिम के साथ किया गया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वापस जाना भी गवारा ना करते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत यहाँ तक लाई थी। तकदीर में ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला जाना होगा और अपनी कुर्बानी पेश करके इस्लाम के परचम को बुलंद करना होगा। मुसलमानों वक्त की कमी है, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचे। करबला में आपको नजरे बंद कर लिया गया। 9 दिनों तक बस एक मुतालबा होता रहा, यजीद की बैत कर लीजिए, आपको नवाज दिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी हुकूमत कायम कर दी जाएगी। हुसैन ने फरमाया, अगर यजीद की बैत करनी होती तो मदीना में कर लेता, यजीद की बैत करनी होती मक्का में कर लेता, यजीद की बैत करनी होती मैं इससे पहले और कहीं कर लेता, यजीद की बैत करनी होती तो मुझे इतनी मुसीबतें ही बर्दाश्त ना करनी पड़ती। मेरा अब भी वही जवाब है जो कल था कि मैं यजीद के हाथ में कभी अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब ये जवाब आ गया तो यजीद ने कहा कि उनको एक रात की मोहलत दे दो। रात की मोहलत दे दी गई। 9वीं 10वीं शब है जिसे शब आशूरा कहा जाता है, 9वीं मुहर्रम का दिन गुजर चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रात अपने घर वालों को ये पैगाम अता फरमाते हैं कि जिस कदर हो सके अल्लाह को याद कर लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, नमाजों का एहतमाम कर लो, कुरान की तिलावत कर लो, नबी पर दुरूद पाक भेज लो और जितना हो सके अपने अहलो अयाल को सब्र की तलकीन कर लो, क्योंकि कल का जो दिन होगा इसके बाद हमें कोई रात मिलने वाली नहीं है। कल का दिन हमारी आखिरी जिंदगी का दिन होगा। मुसलमानों, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम आखिर वक्त तक दिया, आखिर रात तक दिया, पैगाम यही था कि हमें हर हाल में अल्लाह का बनकर होना होगा, हमें हर हाल में रसूलुल्लाह का बनकर रहना होगा, हमें हर हाल में अहले साहबा अखियार का बनकर रहना होगा, हमें हर हाल में अहले बैत का शहदाई बनकर रहना होगा। और जिस कदर इनसे मोहब्बत करेंगे, याद रखो मुसलमानों, हदीस के फरमान के मुताबिक इन्नल हसना वल हुसैना
کہا سیدہ شباب اہل جنہ کہ بے شک حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب سردار کا نام لیں گے, ان کو یاد کریں گے, ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.